जय प्रभु जगन्नाथ। ज्ञान प्रभा मिशन के इस वार्षिक आनंद उत्सव पर हम सबको जिनका आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे श्रद्धेय श्री प्रज्ञानंद जी परमहंस महाराज, श्रद्धेय संतानंद जी महाराज, वंदनीय मां रुमझुम ज्योतिर जयंती मां, इस सभागृह में उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, मेरे अपने परम स्नेही आत्मीयजन, आनंदित हूं, गर्वित हूं, आपको प्रणिपात करते हुए, प्रणाम करते हुए कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। All over the world, there are so many technical institutions, technological institutions, studying the subtle laws of the material nature. पूरे विश्व में दुनिया भर की ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, अपने उड़ीसा में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी है। What in the whole of the world, if I am not wrong, there is no university studying the constitutional position of the soul. पूरे विश्व में ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, and therefore there is degradation, devastation, disharmony, disorder, distress, darkness, dehumanization, denaturalization, chaos, completely chaos. While there is one university, and that is called perhaps Vivekananda University of India, which says, which preaches, well, arise, O soul, vanquish time and death. Just today, you see, you are listening to Tishthit Jagre. You have an opportunity, utilize it, and get out of the clutches of this material nature that is the preconceived conventions, formulations, psychological conditionings. इससे बाहर निकलना है। संत लोग इसको, बड़े लोग, फिलोसफर्स कहते हैं माया से बाहर निकल, come out the clutches of this Maya, which doesn't exist. Maya means the matter does not exist. It is derived from consciousness. And Shri Ma of Pondicherry says, make matter ready to manifest into spirit. It is time now, high time now, कि आप मैटर को स्पिरिट में बदलने का, ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करें। ब्यूटी, पीस, लाइट, तमसोरमा ज्योतिर्गम, hovering in the sky, awaiting to visit this earth, इंतजार कर रहे हैं कि पृथ्वी पर कब उतरें। Well, that is there one university, and therefore this university, once Hindu monk कहिए, संन्यास्त सम्राट कहिए, goes to the parliament of religions. Well, two simple words you see, sisters and brothers of America. Brothers and sisters नहीं कहा, sisters and brothers of America. He rather in these two words you see, he pronounced, propagated, advocated the thesis of Srimad Bhagavad Gita. स्वाभाविक रूप से पूरे गीता का सारांश यही तो है, मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, अविभक्तं सर्वभूतेषु विभक्तमैव च स्थितम्, सर्वभूतस्थं आत्मानां सर्वाणि भूतानि च आत्मनि, अहम सर्वभूतानां हृदि सन्निविष्टो. So many verses are there, you see, speaking the same thing, you see. And that is what he propagated, and therefore
ममेवंशो जीव लोके या ईश्वरांश जीवावनाशी, कुछ भी कहिए। Therefore, इसका मतलब स्वाभाविक अंश, द पार्ट ऑलवेज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द होल। दैट इज व्हाट भास्कराचार्य से। अग्नि ऊपर को जाएगा, फल नीचे को आएगा, बूंद सागर की तरफ जाएगा, अंश अंशी की तरफ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा वट एवर यू प्रीच, वट एवर यू टॉक, अडॉप्ट एनी वे यू लाइक टू से, वेल यू विल अल्टीमेटली कम टू मी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि, माम वर्तमान अनुमतन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ऐसा उन्होंने कहकर कहा और उसके लिए तरीका भी बताया, हमको भी बताया, बच्चों को भी बताया। What is education after all? It is manifestation of perfection already in man. And what is that perfection? Yajjah karam sam udbha. Swe swe karm abhiratta sansiddhim labhte nara. Performing the prescribed duty is perfection. And what is perfection? Saints, philosophers, scientists, all over the world, and whatever the volumes are written over today, see, they speak only one thing. So many words are there, you see. You can say truth, you can say bliss, you can say compassion, you can say consciousness, you can say the present moment, you can say the being, you can say the transcendence, you can say the nature, you can say the reality, you can say the one force. Speak anything, whatever you like. But ultimately, that is nothing else but the divine, you see. And therefore, we are here on this earth to find the divine and to unfold the divine purpose of the universe. That is what the Vivekananda University is. I was listening here, you see, just about the mother power and womanhood, etc. You see. प्राच्य ऋषि वेद व्यास के पिता भगवान को डिफाइन करते हैं, all riches, all beauties, all knowledge, all fame, all strength, and the last is all renunciation. ये मुश्किल है छठा। बाकी तो बिल गेट्स मिल जाएगा, एलन मस्क मिल जाएगा, जेफ बेजोस मिल जाएगा, हिंदुस्तान में कोई अंबानी मिल जाएगा, कोई और मिल जाएगा, लेकिन ऑल रिनंसिएशन ऐसा करके उन्होंने 6 गुण बताए भगवान। हम एक बार महुआ में मुरारी बापू के आश्रम में, जो 3 दिन तक डेलिब्रेशन चलता है, जिसमें पूरे देश के, विश्व के सब लोग आकर उपस्थित होते हैं और सब्जेक्ट दिया जाता है, उस पर सब्जेक्ट यही था, मदर वुमनहुड। उस पर बोलने का विषय था। तो एक साइंटिस्ट को हमने सुना, उसने कहा कि वेद कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद जो पूर्ण बचता है वो ईश्वर। अब जरा पूछिए विश्व से, पूछिए धरती के लोगों से, इस वसुधा से, पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद पूर्ण बचता ऐसा कौन है? मां के अतिरिक्त और कोई नहीं। लेकिन कई बार हमको बड़ा अचंभा होता है जब महिला सशक्तिकरण का बात होता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के को। गीता बोलता है कीर्ति श्री वाच्य नारी नाम समृति मेधा धृति क्षमा। ये भगवान कृष्ण के रसखान बोलते हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखो सुनियो कब हूं न कितई वो कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन, हेरत हेरत हारी फिरो रसखानी बतायो ना लोग लुगायन, देखो दूरयो कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाए। राधा के चरण दबाते हुए देखा कृष्ण। श्री राम आचार्य शांति कुंज के बोलते हैं, कहते हैं, बहुत बड़े, आप कह सकते हैं इस युग के सबसे बड़े फिलोसफर्स कह सकते हैं, बहुत लिखा है।
दुनिया भर की बुक्स लिखी हैं कि हम सभी का जन्म आदि शक्ति के गर्भ से हुआ है। अथर्ववेद भी कहता है अर्थ इज माई मदर, आई हमर चाइल्ड। आदि शक्ति के गर्भ से हुआ है, इसलिए हम सब भाई और बहन हैं। इसी को तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका करके तो कहा। अरविंद भी कहते हैं मृणालिनी देवी को, अपनी पत्नी को, मेरा पागलपन है कि इस वसुधा के कण कण में मुझे मां भगवती के दर्शन होते हैं और मैं मां भगवती का साक्षात करना चाहता हूं। एंड ऑल द पोटेंशियलिटीज which are in me must be dedicated at the altar of this mother earth। इसे 3 पागलपन का जिक्र वो करते हैं। आदि शक्ति के गर्भ से उत्पन्न, ये केवल उड़ीसा उत्कल प्रदेश ऐसा है पूरे विश्व में जो रजो उत्सव मनाता है। इसके पीछे का भाव भी यही है, ममता और वात्सल्य को 3 दिन आराम करने दें, उसके लिए खाना पकाएं, दुनिया भर के सब पकवान पकाएं, उसका भोग करें, उसका अर्चन करें, पूजन करें, आराधन करें, समर्पण करें। युग की मांग पर किसी शांता ने श्री राम को दिया, किसी देवकी ने भगवान कृष्ण को दिया, किसी पुंजस्थला ने हनुमान को दिया, गंगा ने भीष्म को दिया। युग की मांग पर वह इस युग को सब कुछ देती है। उसके सशक्तिकरण की बात चलती है तो थोड़ा मुझको क्षमा करिए, अनजाना अनमना सा लगता है। कुछ है गड़बड़, किधर गड़बड़ है वो अलग बात है। उतनी गड़बड़ी है कि जैसे महात्मा गांधी का 150 ईयर मनाने पर महात्मा गांधी तो ऑप्रेस्ड के लिए थे, दुखी और महादुखी लोगों के लिए थे। मनाते सब हम बड़े लोग, कहीं नहीं मनाता कोई गरीब आदमी महात्मा गांधी, सब हम ही लोग मनाते हैं। डर लगता है, वो मनाने लग गए तो मुश्किल हो जाएगा। एवरी विलेज विल बी देन रिपब्लिक, फिर हर गांव रिपब्लिक होगा, फिर स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा, फिर स्मार्ट विलेज बनेगा। इसलिए घबराते, कहीं ऐसा तो नहीं है महिला सशक्तिकरण के विषय। इसलिए वन हैज टू वॉच ऑल दीज थिंग्स। से जहां तक महर्षि विवेकानंद का प्रश्न, हम सब जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं। जेडी कृष्णमूर्ति कौन से पढ़े लिखे थे, रामानुजम कौन से पढ़े लिखे? पढ़े लिखे थे, अनहद नाद को सुनते थे। नृत्य और रास, महारास करते थे, नेचर के साथ करते, प्रकृति के साथ करते। ये लोग जो प्रकृति के साथ रास करते हैं, जैसे प्रज्ञानंद जी करते हैं, ये प्रकृति के साथ रास करना, महारास करना कोई आसान थोड़ा है। वो आसमान से ऊपर होता है या पृथ्वी से नीचे होता है? इसलिए स्वाभाविक रूप से जहां तक स्वामी विवेकानंद का या महर्षि विवेकानंद का संबंध है, हम सब जानते हैं कि भारत जिसको दुत्कारा जाता था, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस, 100 वर्षों तक बेहोश रहा पूरा विश्व 1893 के बाद। फिर तो हम पोखरन इंडिया, हाईटेक इंडिया और डॉक्टर इंडिया बन गए अटल जी के शासन में। और अब तो हम विश्व को कहने चले हैं कि लेट अस मूव इनटू दिस वर्ल्ड। मैं भी पुस्तक देख रहा था प्रज्ञानंद जी महाराज की, फ्लावर्स वाली, क्या यू हैव गॉट फ्लावर्स फॉर दी। देश के माननीय प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, let us move into this world with a flower pot in our hands, emitting fragrance to the dead and to the dove, to the dragons also, to the believers and to the non-believers. All the nations can live together while complementing each other, of course, preserving their own identities and the culture, you see. There we go. पर विवेकानंद जी ने, हमारे देश ने, जैसे संत वृंद है, कैसा सुंदर है। हमारा संस्कृति को अगर बोलना हो तो स्वभाव माधुर्य प्लस सौंदर्य माधुर्य है। पूतना का विष भी पीते हैं और यशोदा की गति भी प्रदान करते हैं। हम जी पिंग को मक्खन भी खिलाते हैं,
पर डोकला में उधर झगड़ा करने में भी वो पीछे नहीं रहती। इसलिए नहीं कि भारत की कोई सीमाएं हैं, भारत की सीमाएं नहीं है, बॉर्डर्स नहीं, इट इज ए लिविंग बॉर्डर्स। ऐसे ही हो गया क्या? स्वेतलेना स्टालिन की बेटी इधर आती है, फ्रांस की लड़की अल्फा सा आकर इधर श्री मां बनती है, इंग्लैंड की बेटी मार्गरेट नोबल आकर यहाँ भगनी निवेदिता बनती है। तो इसकी सीमाएं हैं क्या? इट्स ए लिविंग गॉडेस, और उसकी प्रतिमूर्तियां आप सब उपस्थित हैं। बहुत ज्यादा मैं कहता हुआ प्रणाम करता हूं। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। और इस उत्सव के लिए 2 लाख रुपए अपनी तरफ से उपहार के स्वरूप भी उपस्थित आहुति देता हूं। धन्यवाद। वंदे।